Hello everyone. Hi, welcome to Unacademy. This is Sri Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. I welcome you all. Hi Harsh Goel, कैसे हो बेटा? Welcome to Unacademy guys. I'm BCom honors from Delhi University and a chartered accountant and plus educator on Unacademy for class 11th and class 12th for both business study as well as accountancy. I welcome you all everyone. Before starting this quiz contest, let me introduce a very important to you. Hi Ria Rathore. Hi Subhashri. कैसे हो? Very marvelous morning guys. Why you should join the plus subscription? The first reason is learning live from the comfort of your home. That is, you learn live from your home. आप कहीं पर भी हैं, wherever you are, you can take classes like you are taking it at your home with unlimited access to all the courses. Right, there is no limitation on accessing the courses. You can watch all the courses, guys, with the top educators of India only at one platform, that is Unacademy. There is only one platform, Unacademy, where you have all the top educators from across India. One from Delhi, one from Mumbai, one from Gujarat, one from Bihar, one from Rajasthan, one from Madhya Pradesh. From every state, every corner, you have top educators to guide you, to teach you, to tell you what to do. With the exhaustive coverage of syllabus, the course is covered thoroughly. हाय रिया राठौर, बेटा फटाफट जल्दी से इस लिंक को अपने सारे ग्रुप में शेयर कीजिए. डू शेयर इन ऑल योर ग्रुप्स गाइस. हरी अप फास्ट. राइट, फटाफट जल्दी से, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके दोस्त सारे फटाफट यूट्यूब पर आ जाएं और एक बहुत अच्छा क्विज कंपटीशन क्रिएट हो जाए. एवरीवन डू इट फास्ट. With exhaustive coverage of syllabus and regular doubt clearing sessions. Every fourth class, hi Harsh Kashyap, every fourth class is a doubt clearing class. So if you miss any class for any reason, let's suppose you miss the class, you can watch the recorded class and you can ask your doubts. Right, you have a live test series also, study material in PDF format, answer writing sessions, mentorship and guidance, that is motivation and career counseling sessions also. Oh, this is a golden chance for every one of you to have the scholarship worth rupees 5 lakh. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है. इस चैंपियनशिप के लिए आप अभी अप्लाई कर दो. मे बी यू आर गोइंग टू बी द विनर. आप में से कोई भी विनर हो सकता है. सो भैया इसको फटाफट जल्दी से ज्वाइन कीजिए. ऑल इंडिया चैंपियनशिप फॉर क्लास 6 टू क्लास 12 on November 1st. In the description box there is a link. You must join this link now. Hurry up guys. Unacademy Plus subscription features, there is a daily practice section with weekly mock test series and new live quiz for you guys. Now this is new subscription features, like this is called iconic subscription feature, where you will have personal mentor, get one-on-one guidance from top educators on all your concerns. With Parent Connect also, regular open hours available for parents to discuss concerns with your personal mentor. So your parent can also connect. देखिए, आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल रहा है जो आपको गाइड करेगा व्हाट टू डू. आपके सारे लाइव डाउट सॉल्विंग होगी. अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस, डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स. With study planner, study tracker plan with monthly reviews that highlight your progress. All benefits of the plus courses, live classes, तो जो आपको मिल रही हैं सब कुछ है जो प्लस कोर्स में सारी बेनिफिट्स हैं. उसके अलावा आपको वीकली रिपोर्ट भी मिलेगी. You will have a detailed report on classes attended and performance in tests and quizzes. और इससे ज़्यादा क्या चाहिए भैया? सारी चीज़ें आपके पास. Everything before you guys. You will have everything. So this is now you have to decide whatever you want.
These are the courses going on. Commerce 11, Science and Commerce complete syllabus batches for 2021 are going on right now. You can join these batches. Then there is a Commerce NCERT weekend batch. That is, you can join us on Saturday and Sunday. For any reason, let's suppose you are busy on weekdays, you can join us on Saturday, Sunday as well. For class 11, the timings are 11 to 12:30, right? You can join me 11 to 12:30, right? For class 11 business study. And if you're in class 12, you can join me from 9 to 10:30 for business study, class 12th. And of course, there are some batches going on for science class 11, 12 in English and Hindi medium. You can refer to your friends, relatives, colleagues, your juniors. And there is a Shine batch going on right now. You can join me 3:30 to 4:30 Monday to Friday for your business study requirement for class 12th. If you're in class 12 for accountancy, you can meet me at 5 to 6. 6:30 to 7:30 I take accountancy for class 11th. So you can join me Monday to Sunday. Every day I am available for you guys, right? It's up to you. As per your time convenience, you can join us. Then batches for humanities are also going on. You can refer to your friends, relatives, colleagues, your juniors for humanities batches also. You will have a test series also for class 11, class 12th. You have a critic corner which is called complimentary with the CBSE. So get plus subscription for any CBSE goal and access unlimited live and recorded courses for creative experts. This is just totally complimentary for you guys. With the plus subscription, you will have Vedic mathematics, doodling, public speaking, origami, magic tricks, poetry, storytelling, robotics, mnemonics, debating. Right? It's a complimentary for you. You must join this quiz. Plus features or iconic features. Both are available with you guys. So now it's your choice which one you join. और आपको मैं फी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में. For class 11 and 12, for plus course, the fees is 938 rupees per month. And referral code is Ram Ahuja Live. You can get maximum discount by using referral code Ram Ahuja Live. If you join iconic subscription for class 11-12, the fees is 2100 per month. And if you're in class 12 and joining for the plus subscription, the fees is 1125. And for class 12 iconic subscription, the fees is 2100 per month. Don't forget to use this referral code Ram Ahuja Live. You will get the maximum discount, guys. Yes, guys, are you ready for the quiz contest? Everyone, fast. Hurry up, guys. Your first question before you. Bookkeeping means. Bookkeeping means. Option A, keeping books. B, recording in books. C, recording of business transaction in books. D, all of the above. बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है बेटा? आपको ऑप्शन में आंसर देना 1A, 1B, 1C और 1D. You have to answer 1A, 1B, 1C or 1D. Bookkeeping means A, keeping books. B, recording in books. C, recording of business transaction in the book. And D, all of the above. बेटा जो लोग इसको देख रहे हैं कृपया अपने पास पेन पेपर जरूर रखें और उसके अंदर में जरूर मेंशन करें कि आपने क्या किया है. ये कमेंट बॉक्स में डालें ताकि पता चल जाए कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया. ओ वी हैव 1C. We have the option 1C. Hi Kusum, how are you beta? That's great to see you again. जी हाँ, लॉक कर दे बेटा. ऑप्शन 1C को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी. Absolutely correct answer. Well done. Well done उपमा शुक्ला जी. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही उपमा जी. 1C. Bookkeeping means recording of business transactions in the book. बिल्कुल सही आंसर. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. Bookkeeping means ये क्या दोबारा क्वेश्चन आ गया? नहीं, there is a change. Bookkeeping means recording financial transaction in the books of accounts.
बी। ओके निधि, निधि क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस अलग हैं बेटा इसमें। बुक कीपिंग मीन्स recording financial transactions in the books of accounts. B. Taking all steps from recording of transactions in the books of original entries to preparation of final accounts. C. Preparing final accounts. Or D. Taking all steps after preparing final accounts. तो समझ के आंसर दीजिएगा निधि, कुसुम, एवरीवन। हाँ जी, आपको आंसर देना है 2A, 2B, 2C और 2D। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे प्लीज उसके साथ में 2A, 2B, 2C और 2D का ऑप्शन जरूर लगाइएगा। वेल डन कुसुम, वेल डन निधि, बहुत बढ़िया आंसर से एवरीवन। एंड द करेक्ट आंसर इज, लॉक कर दो जी, बताइए एवरीवन। 2A को लॉक करूं या 2B, 2C और 2D? The correct answer is absolutely correct. 2A, recording financial transactions in the books of accounts, is called bookkeeping. Well done guys, all the best, great. Accounting starts, option A, where bookkeeping begins. B, where bookkeeping ends. C, where books are not maintained at all. Or D, after preparing final accounts. हाँ जी, accounting starts where bookkeeping begins. B, where bookkeeping ends. C, where books are not maintained at all. D, after preparing final accounts. निधि कहते हैं सर थर्ड का ए ऑप्शन होना चाहिए, और कुसुम चौधरी कहते हैं थर्ड का डी ऑप्शन होना चाहिए। तो बताइए जी, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? यस एवरीवन, प्लीज टेल मी। थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट है, या कोई और ऑप्शन है जो करेक्ट हो सकता है? थर्ड का ए
थर्ड का बी, थर्ड का सी और थर्ड का डी। हाँ जी, संजय कहते हैं सर थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है, उसी को लॉक कीजिएगा और वो हमें बिल्कुल सही लगता है। चलिए निधि आपके साथ एक और फेवर में आ गए हैं, आपकी वोटिंग ज्यादा हो गई है। कुसुम चौधरी आप क्या कहते हो बेटा, आप थर्ड डी को ही लॉक करना चाहोगे या ऑप्शन चेंज करना चाहोगे बेटा? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? यू वुड लाइक टू चेंज योर ऑप्शन? वुड यू लाइक टू चेंज योर ऑप्शन? चलिए, हमारे पास सबसे ज्यादा फेवर में है थर्ड ए, तो थर्ड ए को लॉक करते हैं। ओ, द करेक्ट आंसर इज थर्ड का बी, वेयर बुक कीपिंग एंड्स। दोनों गलत। दोबारा देखिए जरा, वेयर बुक कीपिंग बिगिंस, बेटा जहां बुक कीपिंग स्टार्ट हो जाएगी अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट हो सकती है? और डी में लिखा हुआ आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स तो बेटा अकाउंटिंग जब खत्म होगी तभी तो फाइनल अकाउंट्स बनाओगे आप। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अकाउंटिंग थोड़ी स्टार्ट होगी। वेल देन भीमा सेन रेड्डी, थर्ड का बी। कुसुम चौधरी थर्ड का बी। हाय यश, हाय नंदिनी, बी आंसर परफेक्ट करेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ ए ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बी ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, डी पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर। आपको आंसर देना है 4A 4B, प्लीज एवरीवन 4A 4B 4C और 4D करके आंसर दीजिए बेटा। कृष्णा शर्मा प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर बच्चा। इज इट 4A 4B? सोनू भदौरिया बेटा 4A 4B 4C और 4D। यश कहते हैं सर 4A, निधि कहती है 4A, सोनू कहते हैं सर ए ऑप्शन, कृष्णा शर्मा ए ऑप्शन 4A, संजय कहते हैं 4A ऑप्शन होना चाहिए। क्या बात है, सब लोग ए के पीछे पड़ गए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। जल्दी जल्दी बोलो लोग। हाँ जी, 4A ऑप्शन करेक्ट है भैया, सारे बच्चे कह रहे हैं 4A। श्री प्रजापति भी कह रहे हैं 4A। श्री प्रजापति सेज 4A। चलिए लॉक करते हैं ऑप्शन और देखते हैं विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। वेल डन गाइस, कांग्रेचुलेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 100% एक्यूरेसी, बिल्कुल सही, सबका जवाब बिल्कुल सही। क्या बात है भाई, यू ऑल आर गोइंग टू बी द विनर, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर ए रिकॉर्डिंग, बी क्लासिफाइंग, सी समराइजिंग और डी ऑल ऑफ द अबव। The characteristics of accounting are A. Recording, B. Classifying, C. Summarizing or D. All of the above. निधि 5D, सोनू 5D, श्रेय प्रजापति 4 का नहीं बेटा 5 का बताइए। नमन बताइए क्या आंसर होगा। संजय कहते हैं 5D, नमन कहते हैं 5D, श्रेय प्रजापति 5D। मतलब आपके को लगता है कि सारे होगा इसके अंदर में। रिकॉर्डिंग भी, क्लासिफाइंग भी, समराइजिंग भी, ऑल ऑफ द अबव। यस, बताइए जी, लॉक कर दिया जाए सारी ऑप्शंस को, सारी ऑप्शंस को लॉक कर दिया जाए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर
5D को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। द करेक्ट आंसर इज वाओ 5D। वेल डन कुसुम। कुसुम बेटा क्या हुआ, कर गए छोटी सी मिस्टेक। द करेक्ट आंसर इज 5D एवरीवन। यस निधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको बताना है इसमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ऑप्शन ए, purchased furniture for rupees 50,000 for business. Option B, paid rupees 25,000 as salaries to employees. Option C, proprietor paid rupees 10,000 for the school fees of his son from his own bank account. And option D, proprietor paid rupees 10,000 for school fees of his son from business. बताइए 6A, 6B, 6C और 6D। ड्राइविंग फोर्स कहते हैं सर 6C, श्रेय प्रजापति 6C, सोनू भदौड़िया 6C, निधि कहती है 6C, लेकिन कुसुम चौधरी सेज 6A। नंदनी कह रही है कि सर मुझे मालूम नहीं है, मैं बहुत ईमानदार हूं। नंदनी ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। लेट इट बी रॉन्ग, आइदर यू विन और यू लर्न। या तो आप जीतोगे या फिर सीखोगे। नंदनी यू मस्ट ट्राई बेटा। संजय से 6C। भैया बताओ जी सोच करके क्या आंसर होना चाहिए। 6A, 6B, 6C। आर्यन अग्रवाल से सर डी होना चाहिए। ओके, 6D should be the correct answer. Yes, Aryan? तो फाइनली क्या लॉक किया जाए, 6A, 6B, 6C और 6D। हरी अप फास्ट एवरीवन। फाइनली क्या लॉक करूं बेटा। नंदिनी कहती है सर बी को ब्लॉक कर दीजिए। चलिए, मेरे पास सबसे ज्यादा जो ऑप्शन आई है वो आई है 6C के लिए। तो हम कंप्यूटर से बोलते हैं। निधि कह रही है 6C, रिया राठौर 6C, सोनू भदौड़िया 6C, श्रेय प्रजापति C, आदित्य राज C। चलिए कंप्यूटर जी, मेरे सारे बच्चे कह रहे हैं सी को लॉक कर दिया जाए, तो सी को लॉक कीजिए और बताइए कि करेक्ट है कि नहीं। वाओ, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेल डन गाइस, वेल डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घनश्याम is a furniture dealer. Which one of the following will not be recorded in his books? Option A, purchase of timber for rupees 50,000. Sofa set worth rupees 40,000 taken to his home. Sale of household furniture for rupees 5,000. And D, dining table of rupees 30,000 given to his friend as gift. बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। निधि, नंदिनी, आदित्य, श्रेया, सोनू, रिया राठौर, आर्यन अग्रवाल।
तो श्रेया प्रजापति से 7D, प्रिया राठौर से 7D, ओके, निधि से 7D, नंदिनी डी ब्लॉक कर दिया जाए, कुसुम चौधरी कहती है 7B, ओके, संजय से 7D और सोनू भदौड़िया से 7D, आदित्य राज भी कहते हैं सर 7C लॉक कर दिया जाए, गौरव जोशी कहते हैं 7D। देखो 7C और 7D में कंफ्यूजन क्यों हो रही है, जरा ध्यान से देखिए जरा। अतुल शर्मा कहते हैं 7D सर, जरा ध्यान से देखिए बेटा। 7C कहता है सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर ₹4,5,000। बेटा घर का फर्नीचर सेल किया, अगर घर का फर्नीचर सेल किया है तो उसका बिजनेस से क्या लेना देना होगा बेटे। लेकिन जब डी देखते हैं डाइनिंग टेबल ऑफ ₹30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट, तो आपको लगता नहीं है कि ड्राइंग है बेटा ये। अगर आप बिजनेस से कोई डाइनिंग टेबल अपने दोस्त को गिफ्ट कर रहे हो तो क्या आप बिजनेस से ड्राइंग नहीं कर रहे हो बेटा। दोनों बेटा ड्राइंग तो कर रहे हो ना, आप सेल नहीं कर रहे फ्रेंड को, मान लिया गिफ्ट कर रहे हो, लेकिन ड्राइंग तो करी आपने, और ड्राइंग करोगे तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर ₹5,000। घर में कोई टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था जो आपने बेच दिया, वो बिजनेस का फर्नीचर नहीं था, ना ही वो ड्राइंग थी, तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो करेक्ट आंसर इज 7C। इज दैट क्लियर एवरीवन? द करेक्ट आंसर इज 7C। The functions of accounting are A. To ascertain profit or loss. B. To ascertain the financial position of the business. C. To provide information to various parties. D. All of the above. K. Prajapati says 8D. निधि says 8 का D होना चाहिए। सोनू भदौड़िया says 8D। संजय says 8D। अतुल शर्मा says D। नंदनी says D कंफर्म है सर, लॉक कर दीजिए। अतुल शर्मा कहते हैं 8 का B होना चाहिए। अतुल बेटा क्या क्या लॉक करूं, आपका 8 का B या 8 का D? ब्लॉक D। अरे वाह, नंदिनी ने तो ताला भी भेज दिया सर, ताला। नंदिनी चाबी तो है नहीं, ताला कैसे लगाऊंगा मैं। नंदिनी ने लॉक का इमोजी भेज दिया लेकिन चाबी तो नहीं है मेरे पास में, कैसे लॉक करो इसको बेटा। हाँ जी, बी और डी में क्या फर्क है। बी कहता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस हमें बैलेंस शीट से पता चलती है, लेकिन प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा बेटा, अकाउंटिंग से ना। हमारा मकसद सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना नहीं होता कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं या कितनी लायबिलिटीज हैं, बल्कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस कमाया ये भी जानना होता है हमें अकाउंटिंग से। इसके अलावा हमें सारी इंफॉर्मेशन वेरियस पार्टीज को भी प्रोवाइड करनी होती है, और वो सब अकाउंटिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसलिए बेटा द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर ABC, तीनों होते हैं बेटा। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8 का D। समझ आ गया बेटा? इज दैट क्लियर बेटा एवरीवन? अनुज अग्रवाल सेज D, यस ऑफ कोर्स बेटा। अरे बाप रे, चाबी की, अच्छा चाबी भी भेजी, थैंक यू नंदिनी। थैंक यू सो मच, लॉक कर दिया मैंने। गुड,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों. द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू A. Record the transactions of business. B. Record the personal transactions of the proprietor. C. Ascertain the profit or loss of business. And D. Ascertain the financial position of the business. Sonu Bhadodia says 9B. Upma Shukla says 9B. ओके, बाकी लोगों का क्या कहना है बेटा? 9 के साथ ऑप्शन भेजिए. नंदिनी, अनुज, संजय, अतुल शर्मा, यस, निधि, गौरव जोशी, आदित्य राज, कुसुम चौधरी, बताइए बेटा 9 का कौन सा ऑप्शन लॉक करें? मेरे पास सोनू कह रहे हैं 9B लॉक कर दो, निधि 9B, कुसुम चौधरी कहती है 9A, संजय से 9B, नंदिनी से सर B लॉक कर दो, और इस बार ताली के साथ चाबी भी भेजी है. ग्रेट नंदिनी. गुड गुड गुड. अरे वाह. श्री प्रजापति सेज B. अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है. बहुत बढ़िया जी. द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू A, B, C और D. ललित तंवर सेज B सर. चलिए, बाबू सिंह कहते हैं जी B. अवर बाबू सिंह कहते हैं B लॉक कर दीजिए. चलिए, सबका ऑप्शन B आ रहा है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है. सारे सही हैं कि सारे गलत? बड़ा रिस्की हो जाता है ऐसे मामले में. आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं. अरे वाह, सारे सही. क्या बात है. वेल डन, वेल डन, वेल डन. इस बार तो भैया तीर सीधा निशाने पे लगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर. बिल्कुल सही. ग्रेट गाइस. अपने लिए जोरदार तालियां बजा लो और एक बार बोलो शाबाश, वेल डन. क्या बात है, आज तो मजा आ गया. ग्रेट. चलिए, which of the following transactions is not of financial character? A. Purchase of asset on credit. B. Purchase of asset for cash. C. Withdrawal of money by the proprietor from the business. Or D. Strike by employees. Which of the following transactions is not of financial character? आपको आंसर देना है 10A, 10B, 10C और 10D. ललित बेटा, प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर ऑल्सो. इज इट 10A, 10B, 10C और 10D?
ओके, निधि सेज 10D, संजय सेज 10D, और तंवर बाबू सिंह सेज 10D, सोनू भदौड़िया 10D, नंदिनी सेज 10D। लॉक कर दिया जाए। इस बार दो दो ताले भेजे हैं भाई, क्या बात है बेटा। इसी को लॉक करूंगा, कहीं और नहीं जाने दूंगा, चिंता मत करो। हाँ जी, अंकित से सर डी 10D, कुसुम चौधरी से 10D। भाई सब डी के पीछे पड़ गए हैं। डी यानी दिल्ली दिलवालों की। जय प्रजापति से 10D, दिल्ली दिलवालों की है भाई, सब डी के पीछे पड़ गए हैं। चलिए कंप्यूटर जी, अब तो आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली को लॉक कर दीजिए। हाँ जी, द करेक्ट आंसर डी लॉक कीजिए कंप्यूटर जी, एंड द करेक्ट आंसर इज डी। वेल डन गाइस। Which of the following transaction is not of financial character is a strike by employees? Well done guys, बहुत बढ़िया। भाई क्या खाकर आए आज ब्रेकफास्ट में, जल्दी बता दो। हाँ जी बेटा, आज ब्रेकफास्ट में क्या किया? क्या खाकर आए हो भाई ब्रेकफास्ट में आज? तीर पे तीर चलाए जा रहे हो भैया। दशहरे का अभी तक आभास नहीं गया क्या? तीर पे तीर, कड़क कड़क, बिल्कुल सही आंसर्स पर। हाँ, ओ भाई मेरे पीछे जो घूम रहा है ये पता नहीं क्या है, ये सिर्फ ऐसे ही घुमाने के लिए भाई नंदिनी। अरे बाप रे बाप, तभी आज गुस्सा निकाल रहे हो यहां पर। डिशुम करेक्ट आंसर यार, डिशुम करेक्ट आंसर। बोले ब्रेकफास्ट किया ही नहीं आज। हाँ। चलिए गुड। अरे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक बीच में आ गया। बेटा प्लस कोर्स ज्वाइन करोगे तो फीस है 938 रुपीज फॉर क्लास 11-12, एंड रेफरल कोड इस राम आहूजा लाइव, देखो यहाँ चल रहा है नीचे। इस राम आहूजा लाइव रेफरल कोड को यूज करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट बेटा फॉर ज्वाइनिंग प्लस कोर्स एज वेल एज आइकॉनिक कोर्स। अगर आप 11-12 के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फीस है 2100 पर मंथ। अगर आप क्लास 12th में हैं एंड यू ज्वाइन प्लस कोर्स, द फीस इज 1125, एंड यू कैन यूज दिस रेफरल कोड राम आहूजा लाइव। For class 12th iconic subscription, the fees is 2100 per month. ठीक है, and the referral code is Ram Ahuja Live. You will get the maximum discount. यार ऐसे मत बोलो नंदनी बेटा, आलू के पराठे सुबह सुबह, ओए होए, मुंह में पानी आ गया भाई। कक्षा बंद करनी पड़ेगी, लाइव छोड़ के भागना पड़ेगा। और आलू के पराठे खाने पड़ेंगे सुबह सुबह। चलिए बताइए आप लोग कहां से बिलोंग करते हैं बेटा? नंदनी, श्रेय, संजय, ललित, अंकित, कुसुम चौधरी, बेटा कहां से बिलोंग करते हैं आप? कौन सी सिटी या कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप लोग? नहीं बेटा, क्लास तो चलेगा। लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज ए, बी, सी और डी। सोनू जी यूपी से हैं, संजय आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके। ललित तंवर दिल्ली दिलवालों की, क्या बात है, दिल्ली से बिलोंग करते हो ललित, बहुत बढ़िया बच्चों। बेटा क्वेश्चन का आंसर करना है 11A, 11B, 11C और 11D। सुभद्रा जी, सुभद्रा बेटे मेंशन आंसर एज 11A, 11B, 11C और 11D। कुसुम यू बिलोंग टू मुंबई, ओके बेटा। निधि यू बिलोंग टू प्रयागराज।
ललित तंवर सेज 11C. नंदिनी, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, अमरावती. ओके बेटा. हाँ जी, 11A, 11B, 11C और 11D. हमारे पास ऑप्शन आ रही है 11C और 11A. बाकी लोग भी भेजिए फटाफट ऑप्शन देखिए क्या आंसर है करेक्ट बेटा. संजय सेस 11C, सुभद्रा झा 11C, सोनू 11C, निधि 11A, कुसुम चौधरी सेस 11B सर. अच्छा 11A कंफर्म नहीं है तो अनब्लॉक कर दो, चाबी भेज दी बेटा. ठीक है चलो जी, खोल दिया ताला बेटे, लॉक खोल दिया नंदिनी. अब बताओ किस पे ताला लगाना है बच्चे, कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा. लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज A, B, C और D. चलिए कंप्यूटर को बताते हैं वो करेक्ट आंसर बताएंगे बेटा. जी हाँ ललित, बिल्कुल मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूं अन अकेडमी पर बेटा. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी ऐप पर, तो मेरी जो भी क्लासेस हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी बेटा. कंफ्यूजन हो गई? चलो कंप्यूटर जी कंफ्यूजन दूर कीजिए बच्चों की मेरे, और बताइए करेक्ट आंसर क्या है. नंदनी को बड़ा अफसोस हो रहा है. नंदनी क्या हुआ बेटा जरा देखो. निधि बहुत खुश है. क्यों निधि? द करेक्ट आंसर इज 11A. Providing information to various parties who are interested in business enterprises. क्योंकि लास्ट ऑप्शन यही होता है बेटा, सबको कम्युनिकेशन करना बेटे. कम्युनिकेटिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा. इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर ऑप्शन ए potential investors, B creditors, C management or D employees. आंसर बताना है 12A, 12B, 12C और 12D. सुभद्रा झा says 12C, निधि 12B, सोनू भदौड़िया 12D. नंदिनी को टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या आंसर होगा. संजय says 12D, ललित तंवर says 12D. विनय तंवर says एम्प्लॉइज ही होगा D. बेटा एम्प्लॉइज क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं क्या एम्प्लॉइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं? उनके किस काम की होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताइए. निधि बेटा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं.
वो इंटरनल यूजर्स होते हैं कि एक्सटर्नल? बच्चा सोचो, पोटेंशियल इन्वेस्टर सबसे पहले कैटेगराइज करो, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आउटसाइडर्स हैं बेटा, दे आर एक्सटर्नल यूजर्स। क्रेडिटर्स दे आर एक्सटर्नल यूजर्स, तो ए और बी तो होगा नहीं। अब बच गए मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज, दे आर इंटरनल यूजर्स। लेकिन क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एम्प्लॉइज यूज करते हैं बेटा? एम्प्लॉइज के किस काम की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताओ? उन्हें तो अपनी सैलरी से मतलब होता है, अकाउंट सही हुआ कि नहीं हुआ उनको उससे क्या कंसर्न, बताइए बेटा। समझ गए बात को? इसी तरीके से आपने सही आंसर तक पहुंचना है बेटा। अब बिल्कुल सही कहा सोनू ने, 12C। ललित तंवर ने कहा 12C। संजय ने कहा 12C। सुभद्रा जा कह रही 12C। आर यू कन्विंस्ड विद द आंसर? अब समझ आ गया आंसर करेक्ट कैसे हमने फाइंड आउट किया? वन बाय वन हम आगे चलते गए और आंसर्स तक पहुंचते गए हम लोग। राइट एवरीवन? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले कंप्यूटर जी करेक्ट आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर इज 12C। वेल डन एवरीवन, बहुत बढ़िया बच्चों। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर: A, researchers; B, government; C, potential investors; और D, all of the above। बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सुभद्रा से डी ऑप्शन, संजय से सी ऑप्शन, ललित डी, सोनू डी, निधि डी। कुसुम चौधरी से 13B, गवर्नमेंट। नंदिनी ने 13D बोला है, साथ में ताला चाबी भेज दिए लॉक करने के लिए बेटा। थैंक यू नंदिनी। सुभद्रा ने अपनी ऑप्शन चेंज कर लिया, 13D से 13C पर आ गई। देखो, रिसर्च करने वाले एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर रिसर्च करते हैं। गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल यूजर होती है, जो गवर्नमेंट ये देखती है कि आप टैक्स कितना पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करती है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी एक्सटर्नल होते हैं, क्योंकि वो भी ये देखते हैं कि आपकी कंपनी में पैसा लगाया जाए कि ना लगाया जाए। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। लाइफ सेज डी, निधि सेज डी। आर यू बेटा कन्विंस हो आप इस बात से? एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव बेटा। ये सभी लोग जो होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट। अब आपको बताना है कौन नहीं है। ए, बी,
सी और डी? बेटा आपको आंसर देने 14A, 14B, 14C और 14D। सोनू सेज 14A, ललित तंवर सेज 14C, हर्षित कुमार सेज 14D, निधि सेज 14C, और लाइफ सेज 14C, संजय बुदान सेज 14C। The correct answer is 14B। फंस गए ना? देखो कितने छोटी छोटी ऑप्शंस है, फिर भी उसमें हम फंस जाते हैं। यार कोई बात नहीं, either you win or you learn, this time you learn। नेक्स्ट आंसर बेटा, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन लेजर, ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, ऑप्शन सी प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन डी प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। Accounting cycle starts with A, B, C or D. Recording of transactions in ledger, recording of transactions in journal, preparing trial balance और preparing a trading account। और आपको आंसर देना है 15A, 15B, 15C और 15D। हमारे पास ललित तंवर का आंसर आ चुका है, वो कह रहे हैं 15B है सर आंसर। संजय सेज 15B, निधि सेज 15B। बाकी लोगों का क्या ऑप्शन है बेटा? प्लीज सेंड योर ऑप्शन, टेक योर ओन टाइम। अल्फा ओमेगा सेज बी, कुसुम चौधरी सेज 15 का बी। बाकी लोग अभी सोच रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हैं। 15A, 15B, 15C और 15D। And guys, the correct answer is absolutely 15B. Well done. Well done Alpha, Gamma, Beta. Well done Kusum. Well done Nandini, Nidhi, Sanjay. Absolutely correct answer. Accounting cycle starts with recording of transactions in journal. एक बार एक दूसरे के लिए तालियां बजा दो यार प्लीज, एक बार दूसरे के लिए तालियां।
इतनी अच्छी गेम खेल रहे हो आप, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इतनी बढ़िया लर्निंग कर रहे हो आप, मार्वलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Creditors of the business want to know: A. Profitability of the business. B. Capability of business to pay higher salaries. C. Credit worthiness of the business. D. Employment opportunities. Creditors of the business want to know what? हाय सत्येंद्र कुमार, कैसे हो बेटा? सत्येंद्र जी बेटा आंसर देना है 16A, 16B, 16C और 16D जी। इस तरीके से आपको आंसर देना है 16A, 16B, 16C और 16D। ट्राई करो सत्येंद्र कुमार। We have answered from Sanjay. Sanjay says 16C. Lalit Tanwar says 16C. Nandini 16C with lock. Ashutosh Kumar 16C. Nidhi says 16A. Kusum Chaudhary says 16A. यानी अब हमारे पास 16A और 16C में कंफ्यूजन है। जरा समझो इस बात को बेटा। क्रेडिटर्स को हमेशा ये चेक करना होता है कि क्या बिजनेस उनको क्रेडिट पे जो उधार दिया हुआ है, बिजनेस को क्या वापस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और उसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, यानी क्रेडिटर्स को पे करने की कैपेसिटी बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब क्लियर हो गए? क्रेडिटर से, क्रेडिटर वर्ड बना है क्रेडिट से, और क्रेडिट से ही वर्ड बना है क्रेडिट वर्दीनेस, उधार वापस करने की क्षमता, कैपेसिटी टू रीपे बैक टू द क्रेडिटर्स इज कॉल्ड क्रेडिट वर्दीनेस। तो क्रेडिटर्स हमेशा इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि उनको उनका पैसा वापस मिल जाए। आप प्रॉफिट कमा रहे हो, उससे उससे क्या फर्क पड़ता है? आप प्रॉफिट में से तो कुछ दोगे नहीं। तो जो क्रेडिटर होता है उसको सिर्फ इस बात में कंसर्न होता है कि उसको पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड दैट is calculated by the credit worthiness of the company guys. So the correct answer is 16C. Creditors of the business want to know the credit worthiness of the, right guys? Hi Anjali Pandey, कैसे हो बेटा? Very marvelous morning. Very marvelous morning बच्चा। Next question. The advantage of accounting are: A. Information regarding profit or loss. B. Information regarding financial position. C. Helpful in prevention of errors. Or D. All of these. The advantage of accounting are A, B, C or D. Ritika Srivastava says D. Satyendra Kumar D. Lalit Tawar 17D. Nandini 17D. Anjali Pandey 17D. Nidhi 17D. Satyendra Kumar तो कह रहे सर 100% आंसर इज डी,
चलिए जी कंप्यूटर जी आंसर लॉक कीजिए डी। मेरे सारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि डी ही आंसर होना चाहिए। ताला चाबी साथ में भेजते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज दिस। मेरी तरफ से आप सबके लिए तालियां। वेल डन गाइस। बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू आर सो कॉन्फिडेंट और आप सबके आंसर्स करेक्ट होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आई एम टू हैप्पी विद ऑल ऑफ यू हैविंग द करेक्ट आंसर गाइस विद सो कॉन्फिडेंस। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which of the following is not the advantage of accounting? बेटा चिंता मत करो, आज क्विज बहुत लंबी है हमारी और आज मैं आपको खूब प्रैक्टिस करा के भेजूंगा। ठीक है, बस 20-25 मिनट और, करीब करीब हमारे 10 से 12 क्वेश्चन पेंडिंग है। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे मैं चाहता हूं आपकी उतनी से ज्यादा प्रैक्टिस हो। ठीक है भैया, जिसने लाइक का बटन नहीं दबाया फटाफट लाइक दबा दो जरा। जिसने लाइक का बटन नहीं दबाया फटाफट लाइक दबा दो जल्दी से। यार मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। मैं होता तो लाइक ही दबाता चला जाता। यस एवरीवन। Which of the following is not the advantage of accounting? A. Systematic records. B. Comparative study. C. Based on accounting concepts. Or D. Helpful in decision making.
चलिए, ऑप्शन 18A, 18B, 18C और 18D कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 18A, 18B, 18C और 18D। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है 18A, and the correct option is 18C, based on accounting concepts beta. Is that clear beta? This is based on accounting concepts. Next question for you guys. Which of the following is an advantage of accounting? Which of the following is an advantage of accounting? Option A, based on historical cost. Option B, omission of qualitative information. Option C, incomplete information. Option D, detection of errors. Which of the following is an advantage of accounting? आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना है। 19A, 19B, 19C और 19D. Which one is the correct answer, guys? Which of the following is an advantage of accounting? देखो, A कहता है based on historical cost. तो ये तो इसकी एडवांटेज नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर जो चीज शो की जाती है उसमें दिक्कत आती है, हमें ट्रू मार्केट वैल्यू पता नहीं चलती है, तो ये एडवांटेज नहीं हो सकता। बी पॉइंट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अगर आपका स्टाफ बहुत इक्विप्ड है, बहुत टैलेंटेड है, तो वो भी ये पता नहीं चलता, ये भी एक लिमिटेशन है। तीसरा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलती, ये भी लिमिटेशन है। और डी ऑप्शन है डिटेक्शन ऑफ एरर्स, ये रियलिटी में आपकी जो है क्या है, एडवांटेज। So the correct answer is 19D. Which of the following is an advantage of accounting? That is detection of errors. Next question आता है, the limitations of accounting are A, influenced by personal judgments. B, based on historical cost. C, affected by window dressing. Or D, all of these. The limitations of accounting are A, influenced by personal judgments. B, based on historical cost. C, affected by window dressing. और D, all of these. आराम से सोचिए समझिए और फिर आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? A, B, C और D। जी, सोच समझ के बताइए कौन कौन सी इसकी लिमिटेशंस हैं। The correct answer is D. The limitations of accounting are all of these. Which of the following is not the limitation of accounting? Which of the following is not the limitation of accounting? Option A, based on accounting conventions. B, evidence in legal matters. C, incomplete information. Or D, omission of qualitative information. Please choose your options very carefully.
भैया बेसिक क्वेश्चंस हैं, फंडे हिला देंगे ये आपके. यू विल हैव टू बी द स्ट्रॉन्ग विद द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग. हाँ जी. 21st का कौन सा आंसर करेक्ट है? Which of the following is not the limitation of accounting? A. Based on accounting conventions. B. Evidence in legal matters. देखो, अकाउंटिंग बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, इसकी लिमिटेशन है, ये तो मैरिट है. बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, हाँ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट वाला भूल गए. कॉस्ट पर जो हम रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. देन हमें बताना विच इज नॉट द लिमिटेशन. बी कहते हैं एविडेंस इन लीगल मैटर्स. लीगल मैटर्स में एविडेंस का काम करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये तो डीमेरिट नहीं है, ये तो फायदा है आपका. चलिए नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हाँ, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को ये आपको नहीं देती है, मार्केट वैल्यू आपको नहीं बताती है अकाउंटिंग. ये लिमिटेशन है. ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, आपका स्टाफ कितना कैपेबल है, कितना एफिशिएंट है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शो नहीं करती है. दिस इज अगेन द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स. This is not the limitation of accounting. Next question is, users of accounting information are A. Owners of business. B. Management of business. C. Creditors. Or D. All of the above. The correct answer is all of the above. Next question is, which one of the following is not an objective of accounting? Option A. To provide information about the assets, liabilities, and capital of the enterprise. Option B. To provide information about the private assets and liabilities of the proprietor. Option C. To maintain records of the business. Option D. To provide information regarding the profit and loss of the enterprise. Which one of the following is not an objective of accounting? Option A, option B, option C, or option D. To provide information about the assets, liabilities, and capital of the enterprise. B. To provide information about the private assets and liabilities of the proprietor. C. To maintain records of the business. D. To provide information regarding the profit and loss of the enterprise.
And the correct answer is option B. Right, guys? Move to the next question. The information provided in the financial statement of an enterprise pertains to dash. A. The nation as a whole. B. The industry as a whole. C. Business enterprise, or D. Proprietor. यस, क्या ऑप्शन होना चाहिए 24 का? ए, बी, सी और डी? बताइए जी, व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज pertains to dash. A, B, C or D? What is the correct answer? Correct answer is option C, business enterprise. The information provided in the financial statement of an enterprise pertains to business enterprise. The branches of accounting are: the branches of accounting are A. Financial accounting, B. Cost accounting, C. Social responsibility accounting, or D. All of the above. The branches of accounting are A. Financial accounting, B. Cost accounting, C. Social responsibility accounting, or D. All of the above. You have to choose your option very, very carefully. ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच है क्या अकाउंटिंग की? कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, आर दीज ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग? If the answer is yes, the answer is all of the above and absolutely correct. These are the branches of accounting. Next question is, accounting is option A, only an art, B, only a science, C, art and science both, D, neither art nor science. Accounting is A, only an art, B, only a science, C, art and science both, D, neither art nor science. जी, और करेक्ट आंसर इसका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस बोथ। अकाउंट एक कला भी है और एक साइंटिफिक फॉर्मूलाज भी है जो आपको फॉलो करना होता है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के। इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स,
and it is verifiable by the documents. It has the quality of dash. I repeat the question. If accounting information is based on facts and it is verifiable by documents, it has the quality of dash. A. Relevance. B. Reliability. C. Understandability. D. Comparability. If accounting information is based on facts, it is verifiable by documents, it has the quality of, कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम? रेलेवेंस की, रिलायबिलिटी की, अंडरस्टैंडेबिलिटी की और कंपेरेबिलिटी. अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. प्लीज मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. कौन सी क्वालिटी है? द क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी. भाई जब वेरीफाई हो जाएंगे, फैक्ट्स हमारे पास होंगे, तो हम रिलाई कर सकते हैं ना ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में. कौन सी क्वालिटी आ गई? रिलायबिलिटी. करेक्ट. Next question. Which of the following transactions is of a financial character and will be recorded in the business? A. Goods taken from the business by the proprietor for her personal use. B. Interviewing the candidates for employment. C. Sale of household furniture rupees 5,000. Or D. Received an order of sales for goods. Which of the following transaction is of a financial character and will be recorded in the business? बताइए, आपके पास 4 ट्रांजैक्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड होगा. Which of the following transaction is of a financial character and will be recorded in the business? Option A, option B, option C और option D. Of course, option A, goods taken from the business by the proprietor. इसको ड्राइंग कहते हैं and it will be recorded in the books of accounts. Yes. Next question is, bookkeeping is mainly concerned with A. Recording of financial data. B. Designing the systems of summarizing the recorded data. C. Interpreting the data for internal and external users. Or D. Preparation of financial statement of the business enterprise. Bookkeeping is mainly concerned with A, B, C or D. Bookkeeping is mainly concerned with A, B, C or D. Recording of financial data. B. Designing the systems of summarizing the recorded data. C. Interpreting the data for internal and external users. Or D. Preparation of financial statement of the business enterprise. Bookkeeping is mainly concerned with recording of financial data. That is the correct answer. So we have the last question of this quiz.
Which of the following is not a subfield of accounting? Option A, financial accounting. Option B, bookkeeping. Option C, management accounting. Option D, cost accounting. Which of the following is not a subfield of accounting? Financial accounting, bookkeeping, management accounting, or cost accounting? Which of the following is not a subfield of accounting? And the correct answer is bookkeeping. क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन में किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग. So correct answer is bookkeeping. Thank you so much everyone for joining this quiz. Thank you very much. Thank you so much for following me on Unacademy app. So you can use this referral code Ram Ahuja Live to your friends, relatives, colleagues and your juniors to get the maximum discount everyone. Thank you so much. Subscribe to the channel for more quiz contests. Till then, take care guys. Be happy, be healthy. Bye bye.